in class 2nd. I read in Mahatma Gandhi Government School, Sri Ganganagar. Happy Youth Day to all of you. Arise, awake. Do not stop until the goal is reached. I, Sonia Sharma, wishing you a very special and auspicious good morning. Today is 12th of January, the birth anniversary of Swami Vivekananda. Swamiji's birthday is celebrated in India as National Youth Day and Career Day. Swamiji loved India very much. His message to youth: be strong and be fearless. His father's name was Vishwanath and mother's name was Bhuvneshwari Devi. He was an extra talented person because from early childhood he asked intellectual questions from his teachers. Vivekananda's fame helped to establish Ramakrishna Mission in many places in India. He believed that the service of mankind should be selfless as the service of God. At the end of 19th century, there was all religious conference at Chicago in USA. Swamiji got chance to represent India at that conference. In that conference, his teachings affected the youth in very good manner. He was a person of simple living and high thinking. Thank you. प्यारे बच्चों, कैरियर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, जब भी आप कोई विषय पढ़ते हो तो आपके मन में हमेशा एक द्वंद्व रहता है कि इस विषय का आगे क्या स्कोप है। तो आज मैं आपको बताऊंगी इतिहास विषय में आप अपना कैरियर कैसे बना सकते हो। इतिहास विषय एक ऐसा विषय है, अगर आपका मन इसमें लग जाता है तो आपका कैरियर एक नया आयाम ले लेगा। इस विषय में आप अपनी क्षमता के अनुसार MPhil PhD कर सकते हैं। इसके बाद पुरातत्वविद, इतिहासकार, मुद्रा शास्त्री जैसे पदों पर काम कर सकते हैं, क्योंकि सरकार को जब भी पुरानी वस्तुएं प्राप्त होती है तो उनका अध्ययन करने के लिए उन्हें विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर आपकी पुरानी वस्तुओं में रुचि है तो आप म्यूजियम के अंदर भी किसी पद पर काम कर सकते हैं। इतिहास पढ़ने वालों के लिए फिल्म इंडस्ट्री और इसके अलावा मीडिया और हेरिटेज इंडस्ट्री में भी रोजगार के काफी अवसर है। जब आप गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं देते हो तो उसमें भी इतिहास विषय एक अहम रोल निभाता है। इसलिए आप अपने मन से विचार निकाल दीजिए कि इतिहास विषय पढ़ने के बाद हमारा विषय क्या होगा। धन्यवाद। Dear students, myself Ritu Kataria, lecturer English, Mahatma Gandhi Government School, Sri Ganganagar. As you all know, today we are virtually celebrating birthday of Swami Vivekananda as Career Day. Students, if you have inclination towards English, then apart from making it as a medium of your studies, you can make it your career also. For example, you can become a translator, you can become an interpreter, you can also join some media house as an editor of news reporter, news reader, and moreover, if you have interest in becoming a teacher, you can become a school lecturer, a college lecturer, or you can open your own academy and give coaching to students who are preparing themselves for various competitions like IAS, RAS, bank exams, because English is compulsory everywhere nowadays. So think over it and follow your passion if you have towards English. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कैरियर डे के बारे में बताऊंगा कि कैरियर डे क्यों मनाया जाता है। भारत के अंदर स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस 12 जनवरी को हुआ था। उन्हीं के उपलक्ष्य में पूरे भारत के अंदर कैरियर डे मनाया जाता है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत, समाज सुधारक थे स्वामी विवेकानंद जी, तो उन्हीं की जयंती के ऊपर कैरियर डे मनाया जाता है। कैरियर का मतलब है अपनी आजीविका का साधन। तो बच्चों, हर इंसान, आदमी चाहता है कि मेरी आजीविका बहुत अच्छी हो, तो इसके लिए जो हमें फैसला लेना है बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि जिसमें हमारी रुचि हो हमें वही आजीविका काम में लेनी चाहिए।
जिसमें हमें आनंद आए, उत्साह हो। तो इसके लिए मैं आपको एक बताता हूँ। राजस्थान सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की थी, जिन्होंने राजीव गांधी पोर्टल स्टार्ट किया था। तो इस राजीव गांधी पोर्टल के लिए मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे ऐप को डाउनलोड करना है। तो आप गूगल में जाकर राजीव गांधी पोर्टल लिखेंगे और उसके बाद उसको डाउनलोड कर लेंगे। इसके लिए इसका जो पासवर्ड है वो शाला दर्पण की आईडी और प्लस SR नंबर और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 लगाने से ये खुल जाएगा। इसमें वोकेशनल, नॉन वोकेशनल के बारे में पूरा डिटेल दे रखा है। वोकेशनल के अंदर जैसे एग्रीकल्चर है, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वस्त्र है, सुरक्षा है, एनिमेशन है, इनके बारे में पूरा डिटेल दे रखा है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, आशा ही नहीं अभी पूर्ण विश्वास है कि आप ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद इससे बहुत सारे कोर्सेज हैं। इसके अंदर लगभग 10 लाख कोर्सेज हैं और 960 कॉलेजेस के बारे में दे रखा है। इसी तरह से लगभग 950 छात्रवृत्तियों के बारे में दे रखा है कि डिटेल हम इनके ऊपर जाके अच्छे से सर्च कर सकते हैं। और आशा ही नहीं अभी पूर्ण विश्वास है कि आप इसको डाउनलोड करके इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। आप सभी को कैरियर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी को अर्थशास्त्र विषय में आप अपना कैरियर किस प्रकार से बना सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी। जैसा आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें अलग से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत ही महारत हासिल की, जैसे उर्जित पटेल, अमर्त्य सेन और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। अब बात कैरियर की करते हैं कि आप किन किन क्षेत्रों में अपना कैरियर बना सकते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर, इंटरनेशनल ट्रेड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बीमा, वित्त, टैक्सेशन और शेयर बाजार आदि ऐसे कई प्रकार के क्षेत्र हैं जिसमें आप अपना एक अच्छा भविष्य चुन सकते हैं। इसके अलावा RBI के अंदर भी अलग अलग प्रकार की भर्तियां सिर्फ अर्थशास्त्रियों के लिए निकाली जाती हैं। आप RBI के अंदर भी अपना भविष्य चुन सकते हैं। और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना चाहते हैं तो वर्ल्ड बैंक, IMF, इस प्रकार की कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिसमें PhD होल्डर अर्थशास्त्रियों को लिया जाता है। और इसके अलावा अर्थशास्त्र और बाजार अर्थव्यवस्था में कई प्रकार की बिजनेस पत्रिकाएं छपती हैं, तो आप बिजनेस पत्रकारिता के अंदर भी अपने कैरियर को चुन सकते हैं। और मैं ये ईश्वर से कामना करूंगी कि आप जिस भी क्षेत्र को चुने आपको भगवान उसमें सफलता प्रदान करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। Happy Career Day to all. This is Samir Garg, a computer teacher from Mahatma Gandhi Government School, Shri Ganganagar. There are so many career opportunities in computer education field. You can do your graduation in computer in following 2 ways. First of all, you can do your graduation in computer education by doing BCA, that is Bachelor in Computer Application, and after that you can do your post graduation by doing MCA, that is Master in Computer Application. And the second one, you can do your graduation in engineering by doing BTech in computer science and further masters by doing MTech in computer science. After passing the above courses, you can avail different job opportunities in big MNCs with huge salary packages. Some job profiles are software developer, as a database administrator, computer hardware engineer, computer network architect, web developer, project manager, and computer science blogger, and many more. Thanks to all. करियर डे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मिथिलेश सोनी विज्ञान के विषय में आपको बताना चाहती हूँ कि विज्ञान विषय में आपको करियर के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ आप मेडिकल, नॉन मेडिकल 2 ब्रांच लेकर जा सकते हैं। बायोलॉजी के साथ में मेडिकल और पैरामेडिकल ब्रांचेस मिलेंगी और मैथ्स के साथ में आपको इंजीनियरिंग ब्रांच मिलेंगी। लेकिन इन सब के साथ में हमें टेलीकॉम और एग्रीकल्चर की ब्रांच भी मिलती है। पैरामेडिकल ब्रांच में नर्सिंग आता है और फार्मासिस्ट आते हैं। इसमें आप डिप्लोमा, डिग्री, मास्टर डिग्री, PG कुछ भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से फार्मासिस्ट जो हैं वो दवाइयों के क्षेत्र में काम करेंगे। पैरामेडिकल में हमारे पास GNM और ANM कोर्सेज आते हैं। इन सब को हम करेंगे तो हमें हॉस्पिटल जॉब मिलती है। इसी के साथ में मेडिकल में हम जाएंगे MBBS, आयुर्वेद, आयुष, यूनानी, होम्योपैथी
बहुत सारी ब्रांचेस हमको मिलती हैं जो कि हम नीट के माध्यम से एग्ज़ाम देते हैं और हमें एडमिशन्स मिलते हैं। इसी के साथ में नॉन मेडिकल ब्रांच जो है वो आपको इंजीनियरिंग की ब्रांचेस देती है। इंजीनियरिंग में हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जो हम अपनी पसंद के अनुसार और अपने मार्क्स के अनुसार ला सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।